بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا نیوز کی منہاج القرآن کے لانگ مارچ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے۔ سچویشن روم خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور اس میں گاہے بگاہے ہم تجزیے بھی لیتے رہیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب سمیع ابراہیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، خبری ہے پروگرام میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں دنیا نیوز کے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حسین اکبر صاحب، شیعہ عالم دین ہیں، سابق ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سعید قاضی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ آپ انہیں دیکھتے ہیں خبر یہ ہے میں۔ اس سے پہلے کہ ان مہمانوں سے ہم گفتگو شروع کریں، میرے ساتھ ہیں اسلم ترین صاحب، CCPO لاہور ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اسلم ترین صاحب، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ لاہور سے یہ مارچ شروع ہونا ہے، کیا انتظامات ہیں؟ السلام علیکم جی۔ جہاں تک مارچ کا تعلق ہے، پہلے ان کا جو شیڈیول آیا تھا اس میں انہوں نے 10 بجے نکلنا تھا، لیکن ابھی یہ یہاں سے طاہر القادری صاحب نکل پڑے ہیں وہاں سے اپنے ماڈل ٹاؤن ریزیڈنس سے جی، اور اب ان کا کارواں تقریباً چل پڑا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ مکمل ہیں اور ان پلیس ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکنیکل گیجٹری ہے وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جیمر ان کے ساتھ چلیں گے، ایلیٹ ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ تمام راستے جو ہے نا اپنے لاہور کی اور اس کے آگے جتنے بھی جہاں جو ڈسٹرکٹس آئیں گے، متعلقہ ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو سیکیورٹی کور پرووائڈ کریں گے، تو ان کو تمام طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ملک کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا گیا ہے، جی، فول پروف سیکیورٹی کی دی گئی ہے، اور اس میں ان سے بھی پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی ضرورت سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور اچھا، انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے پوری طرح اپنے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، کتنے پولیس اہلکار جو ہیں یہاں پر استعمال کرنے پڑے ہیں آپ کو، کیونکہ بڑا مشکل ہے اتنے لوگوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا؟ ہاں جی، اس میں اب جہاں تک روٹ کا تعلق ہے اس میں اس کے کیولکیٹ کے لیے تو اسپیشل جو ہے وہ ایلیٹ اور جیمر جس طرح میں نے کہا ہے، جی، اور ایک SP ان کو اسکورٹ کر رہے ہیں جو کہ وہاں سے پنڈی تک اپنی جورسڈکشن میں اس کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں آفسر اور جوان جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں روٹ پہ بھی اور تمام ناکوں پہ اور جہاں جہاں انٹرسیکشنز ہیں، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بڑا پیسفلی جو ہے لاہور کی حدود سے باہر نکلیں گے۔ اچھا، چلیں اللہ کرے ایسا ہو۔ ایک اسامہ اگر میں سوال اجازت دیں پلیز سکتا پلیز۔ ترین صاحب، ابھی آپ نے تو کہا کہ علامہ طاہر القادری مکمل وہ سیٹسفائیڈ ہیں، لیکن ابھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا جانے سے پہلے کہ سیکیورٹی کی گاڑیاں ان سے چھین لی گئی ہیں اور ان کو سیکیورٹی پراپر نہیں دی گئی۔ بالکل، اس بارے میں بھی ہم کوشش کریں گے۔ CCPO صاحب کی چونکہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، شاید مصروفیت بھی ان کی بہت زیادہ ہے کہ آج کچھ ماحول بھی ایسا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب، یہ ابھی جس طرح آغاز ہو رہا ہے اس کا، آپ کو کا کیا خیال ہے کہ کتنا یہ مشکل کام ہوگا سیکیورٹی اداروں کے لیے جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ابھی وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہر شہر سے یہاں سے گزرنا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ رحمان ملک صاحب جن خدشات کا اظہار کر چکے ہیں وہ تو یقینی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر تخریب کاری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، وہ خدشات کا اظہار کریں یا نہ کریں، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، کسی آدمی کی اس وقت لائف اور پراپرٹی محفوظ نہیں ہے، تو ان حالات میں یہ بات تو بالکل ایک سامنے نظر آتی ہے کہ جب آپ اتنے ہزاروں لوگوں کا اجتماع لے کے سڑک پہ چل رہے ہیں تو کسی بھی جگہ کوئی بھی جو واقعہ ہو سکتا ہے۔ میں ترین صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر دی ہے۔ فول پروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اتنے لوگوں میں اس طرح سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا یہ دعویٰ جو مجھے ان کی مراد ہے جتنا کچھ ہو سکتا تھا بیسٹ سیکیورٹی ہم نے فراہم کی۔ وہ لائن پر ہے، وہ الزامات کی جو آپ بات کر رہے تھے، اگر آپ کو جی پوچھنا چاہیں۔ ترین صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ہاں، سن رہا ہوں جی۔ جی ترین صاحب، یہ طاہر القادری صاحب ابھی جب نکلے اپنے اس کارواں کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے سیکیورٹی کی گاڑیاں چھین لی گئی ہیں جو میں نے سیکیورٹی ہائر کی تھی، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی تسلی کی گئی ہے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، گزشتہ 5 دن سے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ان کے ساتھ میری بذات خود میٹنگز ہوئی ہیں، اور جو ان کی ڈیمانڈز تھی، ایک انہوں نے جیمر مانگے ان کو جیمر دیے، انہوں نے ایلیٹ مانگی ان کو ایلیٹ دی ہیں، اور یہ باکس فارمیشن میں آل الانگ رائٹ فرام لاہور اپ ٹو پنڈی جو ہے وہ ان کو یہ باکس فارمیشن میں ایلیٹ ان کے ساتھ چلے گی، اور جتنے بھی اویلیبل ہیومن ریسورسز ہیں پولیس کے پاس اویلیبل وہ ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور ابھی میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، ان سے پوچھا گیا ہے
अभी भी उन्होंने बड़े तसल्लीबख्श से उन्होंने कहा नहीं जी हमें सिक्योरिटी के हवाले से हमारे जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना भी पॉसिबल था और इतने बड़े रूट को प्रोटेक्ट करना ये तो अल्लाह करे जी खैरियत से गुजर जाए। बहरहाल हमने अपनी तरफ से अल्लाह के फजल करम से सिक्योरिटी के हवाले से जो जो चीजें अवेलेबल थी हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, रूट पे भी और उनके एंटोरेज के साथ। अच्छा, एक और असलम तरीन साहब मसला ये सामने आता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ से रावलपिंडी तक, उसके लिए क्या किया गया है? हाँ जी देखिए ना, ये ट्रेन को स्मूथ फ्लो के लिए, क्योंकि ये मार्च में चलना है और इतने लंबे सफर के लिए जो कि तकरीबन 280 किलोमीटर के लगभग है, और इसके अंदर उसमें पूरी कोशिश की है जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि ट्रैफिक के अरेंजमेंट प्रॉपर हो, ट्रैफिक डाइवर्शन हो, और उसके अलावा किसी किस्म की कोई कंजेशन ना हो जो कि सिक्योरिटी हैजर्ड हो। ये सारी चीजें जो है ना, इसको बाकायदा कोऑर्डिनेटेड जो है मूव के तहत, इसको कोऑर्डिनेशन के तहत जहाँ जहाँ पे इनके लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे भी मुतलका लोगों की मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये ट्रैफिक में कोई कंजेशन या कोई इस किस्म की रुकावट नहीं होगी। ठीक है, यानी पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। असलम तरीन साहब हमारे साथ रहे, मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं और सईद काजी साहब हैं। इसी बारे में हम बात भी करेंगे। खास तौर पे हज़ारा कम्युनिटी का जो एहतजाज आज भी जारी है, कोयटा में जो सानिया हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, शियाल में दीन है। मोहम्मद हुसैन साहब, पहले हमने देखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी साथ दिया था लॉन्ग मार्च का, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब हम देख नहीं रहे शिया कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन मुकम्मल तौर पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के शियों की एक जमात है और भी बहुत सी जमातें मौजूद हैं। तो इस जमात के अमायदीन ने अपने तौर पर यह फैसला किया था कि हम लॉन्ग मार्च में कादरी साहब के साथ शरीक होंगे, लेकिन यकसर जो हालात बदले कोयटा के वाक़े की वजह से, और वहाँ पर शहदा के जनाजे जो अभी कई दिनों से सड़क पर पड़े हैं, उनके वारिस जो हैं वो इंतहाई सर्दी के मौसम में यकबस्ता हवाओं में अपने मुतालबात लेके बैठे हैं। तो ज़ाहिर है कि जहाँ जनाजे पड़े हों वहाँ बाकी मामलात तो यकीनन बाद में चले जाते हैं, और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या हमारी जाफरिया कौंसल है, उलमा कौंसल है, तहरीक हुसैनिया पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भर की जाफिया लैज़ कराची की जितनी भी शिया तंजीमें हैं वो इस वक्त तमाम तर मामलात को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ कोयटा के उन शहदा के हवाले से मुतवज्जे हैं। और जब तक वो शहदा के लाशें दफन नहीं होती और जब तक उनके कातलों के ख़िलाफ़ कोई ठोस लह अमल नहीं तैयार किया जाता और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होता, ज़ाहिर है कि बाकी किसी मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो यही वजह है कि इस वक्त तक जो सूरत हाल हमारे सामने है कोयटा के हवाले से कि इतने जनाजे जो हैं वो अभी तक सड़क पे पड़े हैं, और गवर्नमेंट बलूचिस्तान क्या वफाक के तो वज़ीर गए लेकिन वो भी उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्योंकि ये वाक़यात पै दर पे हो रहे हैं और हुकूमत ने हर दफ़ा याद दहानी और यकीन दहानी कराई लेकिन नतीजा सिफर रहा। लिहाजा एक मायूसी की कैफियत तारी हुई जिसकी वजह से उन शहदा के वर्सा जो हैं वो समझते हैं कि जब तक इस मसले को आज हल न कर लिया जाए उस वक्त तक हर रोज़ जनाजा उठाने के बजाय आज ही जितना कुछ होता है हो जाए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और अभी तक लाशें जो है उन्होंने रखकर धरना दिया हुआ है। इरफान सईद हमारे ब्यूरो चीफ है कोयटा के। इरफान, अब भी ये धरना, ये एहतजाज जारी है, कोई सरकारी अहलकार यहाँ आया? जी समा, बिल्कुल धरना जारी है और डेड बॉडीज के साथ ये आज तीसरा रोज है जो लोग अपने प्यारों की डेड बॉडीज के साथ यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। वज़ीर आज़म आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और गवर्नर हाउस में इस वक्त इजलास भी जारी है, आला सतही इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं, और इस दौरान उन्हें कोयटा की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है और कोयटा में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। तमाम इस हवाले से जो हमारे जो सोर्सेज ने बताया कि कोयटा में जो FC तो ऑलरेडी उसको 1 माह के लिए उसको इख्तियार दे दिए पुलिसिंग के, इसके साथ साथ उसको ये भी मंजूरी दी गई है कि यहाँ पे कुछ एरियाज के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ पनाहगाहें हैं, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो फोर्सेस की इस्तेदाद है उसको भी बढ़ाने के हवाले से फैसले किए गए। आपसे कुछ देर बाद वज़ीर आज़म यहाँ आएंगे, धरना जो दिए हुए लोग उनसे भी उनकी बात होगी, उनके जो रहनुमा है
उनसे मुलाकात करेंगे और देखते हैं कि वजीर आजम इन जो धरना देने वाले इनको किस तरह मुतमईन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कहना है, जो धरने के शुरका के उनका कहना है कि हम हुकूमती तसलियों से नहीं, अब सिर्फ प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकली हुकूमत इकदाम उठाएगी उस पर हम यकीन रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई मुज़ाकरात से हल निकलेगा और इन लाशों को भी तदफीन होगी और ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कोई इंतजामात भी किए जाएंगे। सईद काजी साहब, ये वो वाक़या है जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मंच ने भी ऐलान किया था कि खदशात इतने हैं लिहाजा हम लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर सकते अमली तौर पर, और ये इतना बड़ा सानिया है, लेकिन उसके बावजूद ताहिर कादरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हर सूरत में किया जाएगा। आपको लगता है अब मुज़ाकरात कोई दरवाज़ा खुला नहीं रह गया, अब हर सूरत लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा? लग तो यही रहा है, मगर मैं पहले ये अर्ज़ कर दूं, स्नूकर खेलते हुए बच्चों को जो मसहकर किया है वो किसी जुलूस में थे? जहाँ भी आप हैं इस मुल्क में गैर महफूज हैं, वो उनका राइट है, इस वक्त किसी आदमी का भी राइट है। और जो आपकी कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने ये फैसला दिया है कि भाई कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है एक लीगल पैरामीटर में। मगर बात यह कि फेलियर कहाँ पे है इस वक्त इस कौम के साथ, क्या हो रहा है? एक तरफ ये दहशतगर्द, यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ जो मैंने कल खबर देखी कि कोयटा में हो ये रहा है कि पहले एक चिट फेंकी जाती है घर में कि मकान खाली कर दो, BLA की तरफ से या किसी तरफ से, वो मकान खाली करते हैं, अगले दिन वहीं से लोग आके उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है उसामा साहब? हो ये रहा है कि एक तरफ तो ये दहशतगर्दी के नाम पे लूट खसूट आम आदमी की जा रही है वहाँ पे, दूसरी तरफ आपने जो कानूनी लूट खसूट है कीमतों, तो इन दोनों के दरमियान आप समाज को जो है वो कुचल रहे हैं। अब अच्छा, ये जो मार्च के लिए निकले हैं, इनका मार्च मुझे नहीं लगता कि किसी मैनिफेस्ट होगा, मगर इनके मार्च की सबसे अहम सबक ये है कि ये समाज और इसमें होने वाला हर वाकया तड़प तड़प के ये कह रहा है कि तब्दीली चाहिए, तब्दीली चाहिए। और ये अभी दिबाचा है, दिस इज द प्रेफिस, ये स्टोरी अभी आगे जाएगी। और अगर इन रूलिंग स्ट्रक्चर्स को ठीक ना किया गया, आम आदमी को आपने रिलीफ ना दिया, तो फिर ये तो खैर मैं अर्ज करता होता हूँ ना कि मिलियन मार्च रोज निकलता है जिसमें 9,90,000 आदमी कम होते हैं, फिर असली निकलेगा और आवाम का निकलेगा जिस तरीके से हम इसे कुछ। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये लॉन्ग मार्च की जिस तरह बात हो रही है, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ हूँ, बहुत माजरत, शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ हैं। शेख रशीद साहब, लॉन्ग मार्च की कामयाबी का पैमाना आपको क्या नजर आता है? अगर मुज़ाकरात में कोई कामयाबी हो जाती है तो लॉन्ग मार्च कामयाब रहा, या अब इस्लामाबाद अरसद पहुंचेगा तो कामयाबी मिलेगी? देखें, लॉन्ग मार्च जोश, जज्बे और कमिटमेंट का नाम है। ताहिर कादरी साहब ने अपनी जो कमिटमेंट थी कौम के सामने वो तो पूरी कर दी, वरना ये जहां और अगला जहां सारा उनके लिए एक नए सवाल को जन्म देता था। और रावलपिंडी में वो आएंगे तो हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, अवामी मुस्लिम लीग साथ देगी लॉन्ग मार्च में? लॉन्ग मार्च को हम रिसीव करेंगे जी मरी रोड पे, ये हमारा उनके साथ, हम उनको सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ ज्यादती हुई तो इस वक्त भी हम लाल हवेली में बैठे हुए हैं, अवामी मुस्लिम लीग जो है वो इस पे सोचो विचार में है कि क्या किस तरह उनको यहाँ रिसीव किया जाए। अच्छा। और मेरे नजदीक इस सर्दी में और इस किस्म के हालात में, और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनकी ट्रांसपोर्ट सारी रोक दी गई है, और ये चांस है लोगों के लिए कि इन करप्ट लोगों से जान छुड़ा लें, क्योंकि वोटों से मैं नहीं देख रहा, इलेक्शन से मैं भी इस शशोपंज में हूँ कि क्या फैसले होंगे। और कोयटा का मसला बहुत सीरियस मसला है, और ये आवाज फौज को बुलाने की कोयटा से शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जो मामलात हैं वो काफी पेचीदा हैं, और फैजाबाद में और इस्लामाबाद में वहाँ ऑलरेडी तोड़ फोड़ और लोग बैठ गए हैं चौकों में, और मुमकिन है ये पाकिस्तान की तारीख की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो, लेकिन ये फैसला आइंदा 24 घंटों में हो जाएगा। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग शामिल हो रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग मार्च में, आपको नजर आ रहा है? फैजाबाद में तो अभी भी लोग हैं, और मुझे यकीन है कि कल लोग शामिल होंगे उनके लॉन्ग मार्च में। और ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ताहिर कादरी साहब की तरफ से कि वहाँ कंटेनर्स हैं, उनमें तेल और गैस भर दी गई है, खंदक खोद दी गई है वहाँ पर, ये सब भी हो रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर? मैं तो पिंडी में हूँ जी, पिंडी में ऐसी कोई बात नहीं है, और पिंडी में कोई कंटेनर नहीं है। यकीनन ये उनकी स्ट्रेटजी होगी मरकजी हुकूमत की कि जो कुछ वो पंजाब की टेरिटरी पे हो, इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद को सील कर दिया होगा। और ये पंजाब की हुकूमत को भी अकल से काम लेना चाहिए कि इनको पुरअमन तरीके से और पूरा प्रोटोकॉल देकर ये पंजाब की टेरिटरी से निकालें, क्योंकि ये अगर बात फैल गई तो ये फैलती चली जाएगी। और ऑलरेडी 2 सूबों में हालात बड़े कशीदा हैं,
تو पंजाब के लिए यही बेहतर है कि पंजाब उनको दानिशमंदी से अपने इलाके से निकाले। शेखुल इस्लाम जो है जमानत की बात कर चुके हैं, अगर फौज और अदालत उन्होंने इशारा दिया है कि जमानत है, दुनिया न्यूज़ से बात करते उन्होंने बात की थी, दुनिया टेट विद मालिक में उन्होंने कहा था, तो आपको लगता है फौज को किरदार अदा कर सकती है ताकि मामला जो है आसानी से हल हो जाए, या अब तारुल कादरी साहब लॉन्ग मार्च में जो वज़ीर आज़म नामजद करेंगे वो वज़ीर आज़म बना देना चाहिए? देखें, तारुल कादरी साहब का तो वज़ीर आज़म नामजद करना अकेला उनका भी ये काम नहीं है, लेकिन फौज जो है उनकी आंखें खुली हुई हैं और फौज देख भी रही है। सारा मीडिया अब इस मुल्क में सारी सियासी पार्टियों ने अपने बड़े मीडिया सेल बनाए हैं। इस तरह ISPR ने भी बहुत तरक्की की है, उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, उन सब की निगाहें हैं इस लॉन्ग मार्च पे। लेकिन ये है कि अगर हालात खराब हुए तो यकीनन मैं नहीं समझता कि कैपिटल है और 10 कोर जो है जहां से इनका जुलूस गुजरेगा 200 गज के फासले से ज्यादा नहीं है जी। तो ये सारे हालात जो हैं ये काफी गंभीर हैं और इन सूरत हाल में मैं ये नहीं समझता कि अगर हालात बिगड़े तो अल्टीमेटली इस मुल्क में हालात को ठीक करने की जमानत उन्हीं पर आती है। ठीक है, यानी हालात बिगड़े तो फिर फौज को किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ थे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आपको पहले भी याद होगा बहुत से हल्के कह चुके कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था अदलिया की बहाली के लिए तो उसमें भी फौज का किरदार रहा था। इस बारे में भी बात करेंगे, तजिया निगारों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सिचुएशन रूम में आपको मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। CCPO लाहौर असलम तरीन साहब का सिचुएशन रूम में यह कहना है कि तारुल कादरी साहब अपनी रहायशगाह से निकल चुके हैं, लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। समी इब्राहिम साहब मुझे बताएं, अब बाकायदा हम देख रहे हैं लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है, ये अब इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो गए हैं, या आपको लगता है अभी भी कोई फोन कॉल आ सकती है और फिर गुजरांवाला से वापसी? देखें, जब तारुल कादरी साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो अपनी पहली तकरीर की, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं अदलिया और फौज निगरान जो सेटअप बनाया जा रहा है उसमें इन इदारों की राय को शामिल किया जाए। जब थोड़ा मीडिया ने इसको कहा कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा हटे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनको निगरान सेटअप में शामिल किया जाए, उनसे मशावरत कर ली जाए। तो अभी तक आज लॉन्ग मार्च पर अभी जाने से पहले जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद के उन मोहतरम और वो जो मुखलिस इदारे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी जानिब से वो मुझसे बात करें और मैं उनको सुनूं। तो ये जो सारा लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है, ये सियासतदानों को तो उन्होंने कहा मैं ना आपकी गारंटी मानता हूं ना मैं आपसे बात करूंगा। पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये कूफा बना दिया इन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा उनसे मैं बात नहीं कर सकता। तो बिल्कुल वो उनकी ख्वाहिश भी यही है, इस लॉन्ग मार्च की जो कोशिश नज़र आती है वो भी यही है कि उन इदारों को जिनका पाकिस्तान के आइन में अब अगले निगरान सेटअप में कोई कानूनी तौर पर कोई जिनकी राय शामिल नहीं हो सकती, वो उन इदारों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का इम्कान ज़रूर है कि शायद कोई टेलीफोन कॉल आ जाए। ठीक है समी साहब, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और इस वक्त वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि एक साथी ने बताया तारुल कादरी साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सईद काजी साहब, फिर ये हल है, उनको अगर बना दिया जाए मामला हल हो जाएंगे? देखिए उसामा साहब, 272 मेंबरान है, उनमें से कौन नहीं बनना चाहता? बड़ी फितरी ख्वाहिश है। यहाँ पे सियासत ही ये हो रही है कौन बनेगा वजीर आजम। वो इलेक्ट होके आए हैं ना, वो इलेक्ट होके आए हैं, तो जो मुमकिन है वो बनना चाहते हो वजीर आजम केयर टेकर। तो केयर टेकर अगर वो मान जाते हैं दो लोग, जिस तरह अभी कहा कि जी आपकी ज़्यादातर हमने मान ली हैं आपके मुतालबे, मसलन केयर टेकर में आपसे ये रात तक तो ये भी बात थी ना कि केयर टेकर पे हम आपसे राय लेंगे, आपकी मर्जी से करेंगे। मगर मामला क्या है? मामला ये है कि एक मजहबी तंजीम है, एक सीट उसने आज तक जीती है, मुख्तलिफ थेरीज चल रही हैं, मैं उन पर नहीं जाता कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे। मगर हुजूर अगर आपने कोई काम ठीक किया होता तो अवाम खुद घरों से निकल के मार्च को रोक देते जीटी रोड पे। आप जो इतने खौफजदा हैं और रैटल्ड हैं क्यों हैं कि 4-5 साल आप जमूर की कवाली तो करते रहे, जमूर को आपने कुचल के रख दिया। और ये भी मैं अब आपको बताऊं, ऐसे मार्च इस तारीख में असली किसी मूवमेंट को रोकने के लिए होते हैं, फिजल आउट करने। ये जो मिलियन मार्च होता है ना, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 9,90,000 आदमी कम होते हैं, ये बेसिकली खौफ होता है कि कहीं लोग जिस तरह आबादियों को हम कुचल रहे हैं कहीं बाहर ही ना आ जाए। तो ये सेफ्टी वेल्व थोड़ा सा गम गुस्सा जो सेफ्टी वेल्व खुलता है। और मुझे ये भी लगता है कोई शक नहीं, जिन मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं वो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। इख्तलाफ जो लोग कर रहे हैं, जिस तरफ समी साहब इशारा कर रहे थे, वो ये है कि क्या हल ये इस तरह लॉन्ग मार्च निकाल दिया जाए। एक सवाल में आखिर में वक्त कम है, अच्छा एक सिर्फ कमेंट करना चाहता हूं। अभी रहमान मलिक साहब कह रहे थे तारुल कादरी ने इतना झूठ बोला
بولا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ویسے اس حوالے سے ٹریک ریکٹ جو رحمان ملک صاحب کا بھی بڑا شاندار ہے جھوٹ بولنے میں، تو عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کمپٹیشن میں ٹرافی کس کو دی جائے، بڑا جھوٹا کون ہے۔ میڈیا بھی ذرا دھیان سے کوریج کرے۔ آخری چند سیکنڈ ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ محمد حسین اکبر صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ ذرائع نے بتایا کوئٹہ سانے کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ذرائع یہ بھی بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، تو پھر زیادہ اچھا ہو۔ صاحب بھائی بات یہ ہے کہ یہ بیان تو ہمیشہ حکومتیں دے دیتی ہیں کہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ داعش کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے۔ جو یہ بتا سکتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ داعش کے اندر کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں، اصل ضرورت یہ کہ ان تک پہنچ ان کا کلا کما کس نے کرنا ہے، اصل بنیادی ذمہ داری تو ان کی یہی ہے۔ یہ سب اپنی بنیادی ذمہ داری سے غافل اور صرف باتوں پہ بات کیے جا رہے ہیں، وقت گزارے جا رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ خدشات اپنی جگہ پر ہیں، لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور طاہر القادری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد تک پہنچیں گے۔ اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ہر قدم پر کوریج آپ کے ساتھ رہے گی، سچویشن روم کی خصوصی ٹرانسمیشن بھی جاری رہے گی اور دنیا نیوز کی خصوصی کوریج بھی جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں حبیب اکرم، ہمارے ساتھی اینکر بھی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں نقطہ نظر میں بھی۔ حبیب اکرم صاحب، آپ اس وقت کہاں ہیں، کیا مناظر ہیں؟ میں اس وقت کیمپس برج پہ کھڑا ہوں اسامہ، اور یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ طاہر القادری صاحب نے ایک مومنٹم بنا لیا ہے اگینسٹ اور جو ہم بات کر رہے تھے اور جس کے بارے میں آج صبح 9 بجے تک بھی بہت ساری اوپینین یہ آ رہی تھی کہ شاید وہ مومنٹم نہ بن پائے۔ تو اس وقت میں کیمپس برج پہ کھڑا ہوں، میں نے بہت سارے جو اپنی صحافتی زندگی میں دیکھے ہیں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھے سائز کا، اچھے میگنیٹیوڈ کا اور اچھا چارج مجرے کے ساتھ ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ ایونٹ ارینج کر دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں حبیب اکرم صاحب، آپ لانگ مارچ کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب لانگ مارچ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس حوالے سے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ سچویشن روم سے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔